Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. This session we are going to learn longest common subsequence. Longest common subsequence. Now, what is the difference between a substring and a common subsequence? Okay, means subsequence. So there is a basic difference between a substring and a subsequence. Let us assume. So you write first. There is a basic difference. There is a basic difference. There is a basic difference between a substring. Is the under the yeah हाँ कसब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है ठीक है. So there is a basic difference between a substring and subsequence subsequence. Like if I'll take an example, let's take an example like Suraj Shah, it's my name. Suraj Shah, it's my name. I'm just taking. So substring, it's going to be contiguous sequence. Okay. For substring, we have to take it continuously. Like SUR is a substring, AJ is a substring, SHA is a substring. Now, this is a substring because it should be contiguous. It should be contiguous. So these are the substrings. Subsequence is going to your subsequence is going to your like a not contiguous, but it should be in increasing order. So like its index is 1 2 3 4 5 6 7 8. So you are taking 1 and 1, so 5 4 and 8 you are taking. Then you are taking 6 and 8, so that is SA. So now in subsequence you can miss out some of the middle part. Okay. So you write substring should be a substring should be contiguous. A substring should be contiguous, and in subsequence and in some sequence we can miss out, and in subsequence we can miss out some of the symbols, and in the subsequence we can miss out some of the symbols, and we can choose the remaining, and choose the we can choose the we can choose remaining any one of them. Okay, we can choose remaining any one of them. So now we choose some of the indices, now we choose some of the indices, and and all those indices should be in increasing order, and all those indices should be in the increasing order.
And if we write those letters or characters of those indices, then that is subsequence. Now if you're done, then please let me know. See, what I am saying that a substring should be contiguous. Substring should be plain again, na? Example I will give. So I am saying that substring should be contiguous, but subsequence we can miss out. We can miss out some of the symbols. In subsequence, we can miss out some of the symbols, which we could do, and we can choose remaining any of them. Okay. Now, if we choose some of the indices and those indices should be in increasing order, then it's going to be a subsequence. Like if now take like S U R A J S H. I have taken, and index is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, it's the indices. Now if I am writing 1 2 3 4 in increasing order, I'm writing the indices 1 2 3 4. Like again I'm writing 1 3 5 8. Again I'm writing 2 7. But I should not write 7 2, not in decreasing order, always in this is not allowed. Always in increasing order. If you write always in increasing order the indices, and in these indices whatever the symbol is there, if you write it, then it is called as sequence, subsequence. Then it is called as subsequence. Like in one you are having S, you two you are having U, and in three you are having R, and in four you are having A. So this is a one subsequence. In one you are having a S, three you are having a R, five you are having a J, and eight you are having a A. Now in two you are having a U, and in seven you are having a H. This is a subsequence. And empty set is also a subsequence. Empty set is also means you are not taking it. This is also a subsequence. Is also a subsequence. Is it fine? Is it fine? Now we have seen what is subsequence. Now our next work is to know how many subsequence we can form. Okay, like if you are having here, what is having? If your string is having S U R A J S H A. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. So you are having a six characters, six letters. Then how many subsequence you can have? See, the S can be present and can be left out. You are having a two possibilities of S. You can include S and you can leave it. Na? So, means you can write one or you can leave it. You can write two or you can leave it. Three, four, five. So in all the cases, you are having a two possibilities, either to include it or to exclude it. Two possibilities, two possibilities, two possibilities. And if you do the total possibilities will be the cross multiplication of that 2 to the power 8. So total number of subsequence you are going to get is 2 to the power 8. If you are having 8 character, then one character can be present in the subsequence or can be left out. Like if you are writing S, it can be there or you can leave it. Or U, it can be there or leave it. Or R, it can be or leave it. A, it can be or leave it. Okay, is it clear? So total number of subsequence. So total number of subsequence is going to your subsequence is 2 to the power 8. See, if you are having doubt, you feel free to ask me. So if you are having 8 character, you got total number of subsequences 2 to the power 8. We'll have a character of m symbols. Now, if we have a string, a string of m characters, m character string, then number of substring will be, sorry, subsequence will be 2 into 2 into 2 into 2 into up to m times. So that is going to your 2 to the power m. If we are having a string of m characters, then we are having a total subsequence as 2 to the power m.
Now there is a many real-time use of this subsequence. So they will give you some DNAs. Okay, they will give you some DNAs and they will ask you that how much they are similar. They will give you two DNAs and they will ask you how much they are similar. If two DNAs are equal, exactly equal, then they are very much similar. Or if one DNA is a substring of another, then also they are very much similar. But if these two DNAs are not a substring of another and if it is not equal, ठीक है, अगर आपको डीएनए दिया गया है, दोनों इक्वल नहीं है ना फिर सबस्ट्रिंग है एक दूसरे का, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कितना सिमिलर है? देयर वी यूज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। तो अगर उसका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ज्यादा रहेगा, किसी का अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ज्यादा है, ठीक है, तो तब हम लोग बोलेंगे कि अगर दो स्ट्रिंग है उसका सबसिक्वेंस और इसका सबसिक्वेंस लॉन्गेस्ट मिला, हमें सबसे ज्यादा मिला, बड़ा वाला मिला, ठीक है ना, देन वी कैन से दैट इट इज वेरी मच सिमिलर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? टू मेजर सिमिलरिटीज in DNA, what we do to measure similarity in DNA? First thing, first thing is if both if both the if both the DNA is equal, अगर दोनों DNA equal है, अगर दोनों DNA equal है, then both the species are then both the species are 100% similar. Then both the species are 100% similar, 100% similar. And second thing is if one DNA, if one DNA, if one DNA is a substring, is a substring of another DNA, अगर एक DNA क्या है, substring है, is a substring of another DNA, another DNA, substring means part of it, then we can say that, then we can say that they are they are very much similar. Then we can say that they are very much similar. And we can say that they are very much similar. And now if both the DNAs, now if both the DNA are not substring, now if both the DNA are not substring of each other, दोनों का substring नहीं है of each other, then then we would then we would like to then we would like to know how much they are similar. Now if both the DNAs are not substring of each other, ठीक है, अगर substring नहीं है, then we would like to know what similar they are. And if both the DNAs are not substring of each other, then we would like to where it is, then we would like to know what similar they are, how much similar they are, how much similar they are, and we would like to know how much similar they are, similar. The similarity similarity depends on the similarity depends on what is the longest common subsequence, what is the longest common subsequence, the subsequence, what is the longest common subsequence, the longest common. Okay, so a DNA consists of four DNA consists of four molecules like ACGT. Okay, so what we will do now, if we have
if we have 2 to the power n subsequence, if we have 2 to the power n subsequence in DNA D1, in DNA D1, and 2 to the power m and 2 to the power m subsequence and 2 to the power m subsequence in DNA D2. Now we should try to find the subsequence which is present both of them and which is the longest. So our work is, if we are having 2 to the power n subsequence in DNA D1 and 2 to the power subsequence in DNA D2, now we should try to find the common subsequence and which is the longest. So now we should try to find 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 which is now we should try to find subsequence which is present. Now we should try to find subsequence. Now we should try to find subsequence which is present in both, is present present in both of them, present in both of them, and and which is longest, so this is longest consequence. This is called longest. This is called longest common subsequence between them. Now if you're done, then please let me know. This is called longest common subsequence. This is called longest common subsequence between between. Okay. So if both of them if both of them are having if both of them are having a very large, very long common subsequence, very long common subsequence, then we can say that they are very much similar. Very long common subsequence, then it means that then it means that they are very much similar. Now we will take an example and I will explain you. So if both of them are having a very long common subsequence, then we can say that they are very, like if you are having a DNA D1, D2, D3, and between D1 and D2, the longest common subsequence is ACG, and between D2 and D3 is AC ACGT. Okay, ACGT, ACGT, length 4. Now between these two, if it is having a common subsequence GAGT, length 5, length 5. So these two are very much similar. D1 and D3. D1 and D3 are very much similar. Okay. Therefore, we can say that. Therefore, we can say that. Therefore, we can say that D1 and D3 are are very much are very much similar compared to each other, compared to any other pair, any other. Now how to find a longest common subsequence? What we can do, one we can do, we can find for any string what is the total subsequence. Now for another string we will find the total substring, and then we will take the common subsequence, and between the common subsequence we will find the longest subsequence. Okay. Yes, 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 sir. Is there any way to get a bulk of question for practice? For that, you can do previous year gate questions. Previous year gate questions last 30 years.
30 years, 33 years previous year gate questions are more than enough. Is more than enough. Okay. So like if I am taking an example, like ACU, RAJ, so topic wise. Yeah, yeah. In previous year questions, you will get a topic wise. SHAW, then AM, AU. Okay. If we'll do only previous year gate questions, then it is more than enough. Now we will take the common subsequence between these two. We will find the common subsequence. The common subsequence is A. Here is also A. Here is also A. And another common subsequence is only A. And another is empty. Another is empty. The common subsequence between these between these two string is A, and empty. So among this, A is the longest common subsequence, and we will say that the longest common subsequence is 2. Okay. So how much they are similar? In this case, we can say that they are too similar. In this case, they are. In this case, if we'll consider this, these two are DNA. In case if they are DNA, then they are too similar. Too similar. Why too similar? Because the longest common subsequence length is 2. Longest common subsequence length is 2. So the common subsequence between these two strings is A, and this is one way. Given to string, we have find the common subsequence, and we have seen that which is going to be the longest one. We will no count null one. Null one we will see. Null is also a common subsequence in both, but it is not going to be the longest one. But it is not going to be the longest one. Yeah. Okay. Because null one, if the longest come sequence is 0, means they are not similar. Means they are not similar. The long if the common subsequence is having a length 0, means they are not similar. Now algorithm to find. Now another how we can do algorithm to find longest common. So what is going to be the algorithm to find the longest common subsequence? So first what you can do, you can find all the subsequence of A. Let us assume you are having a two subsequence. One is A, another is B. So first you find all the find all the subsequences of A. Okay. Now, if you are having, if length of A is having n, then you are going to have how many subsequence? 2 to the power n. So then, so in bracket, if A is having, if A is having n string, if A is having n, if A is having n symbols, then number of subsequence is going to your 2 to the power, let us make is m. The number of subsequence is going, if A is having m symbol, then number of subsequence is going to be 2 to the power m. Now you find the subsequence of A. Now you go to the uh, for each subsequence. Now for each subsequence of A, you go to the string B and see whether it is a subsequence of B or not. Let me write, then it will be more clear. Find for each find for each subsequence find for each subsequence find for each subsequence find for each subsequence whether whether it is a whether it is a subsequence whether it is a subsequence of B
So we have to check, find for each subsequence whether it is a subsequence of B, whether it is a subsequence of B or not. Okay. So you got 2 to the m subsequence, and let us assume the B is having n symbols. B is having n symbols. If B is having n symbols, you will take every substring from A, and you will go to the string B, and you will check whether it is a subsequence in B or not. Okay. Because you have finded the all subsequence of A, now you are going to B and you are checking whether this subsequence is it is also in B or not. So B is having an n symbol. So in worst case, it will scan all the B characters, So to find one subsequence, whether it is a common or not, it will take n. It will take big of n time. It will take big of n time. Okay. Am I clear? So to find whether it is whether the subsequence from A, whether it is also a subsequence in B, it will take big of n time. And total subsequence you are having a 2 to the power n, then it is going to take n into 2 to the power n into 2 to the power n. Because for 2 to the n number of times you have to do. Please let me know whether it is clear or not. What I am saying that if you are having a m symbols in string A, acha, explain it. Good. If you are having a m symbols in string A, then you are going to have 2 to the power m subsequence. 2 to the power m subsequence. Now you are having a m symbols in string B, Now you will take every subsequence from A and you will check whether it is a subsequence in B or like 1, 2, 3, 4, 5, like A, B, C, D, A is there. Now one subsequence, let us assume you are having a. So you will check whether it is a match or not. Yeah, it's a match. A you match. Then you will increment it. No, here. Not a match. Increment it. Not a match. Increment it. No, it's a match. So means you have to scan all these characters in the string B to check whether it is a subsequence or not. So if it is having n symbols, then you have to scan all the n symbols. So it's going to take big of n. देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके पास अगर n सिंबल्स होगा तो आपको ये देखना है कि a इसमें है कि नहीं, तो पूरा पूरा अंत तक तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तो n सिंबल्स है तो देन इट इज गोइंग टू टेक बिग ऑफ n। ये क्लियर है कि नहीं, एक को चेक करने के लिए बिग ऑफ n लगेगा, तो एक सब सिक्वेंस को देखने के लिए हमें बिग ऑफ n लगा, तो हमारे पास टोटल सब सिक्वेंस वी आर हैविंग 2 टू द पावर m, टोटल सब सिक्वेंस वी आर हैविंग 2 टू द पावर m, and to check whether one is a subsequence of string B or not, it's taking big of n. So total time is going to be into 2 to the power n. इतना एक के लिए n लग रहा है, तो सबके लिए इतना लगेगा ना, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू n into 2 to the power n. ठीक है, n into 2 to the, तो सिंस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस देयर विल बी डाउट रहने से पूछ लीजिएगा, सिंस देयर विल बी 2 to the power m subsequence, 2 to the power n subsequence होंगे आपके subsequence of so there will be 2 to the m subsequence in order to in order to check in order to check each subsequence in order to check each subsequence in order to check each subsequence, it is going to it is going to take big of n. In order to check each subsequence, it is going to take big of n. Therefore total time complexity is going to your, therefore total time complexity therefore total time complexity is big O of n to the power 2m. So
In step 2 has taken big of n to the power 2m. Now step 3. So you have find, till now you have find what is the common subsequence. Now you have to find the longest. So now third is find the longest common subsequence. So the total subsequence is 2 to the power m. So you have to see which is going to be the longest. So total you have to scan 2 to the power m to find the longest. Find the longest among common subsequence. Now you have to find the longest among common subsequence. So since nearly there can be 2 to the power m subsequence. So I will go to the next slide. If you are done, then please let me know. Nearly, since nearly there can be 2 to the power m. Since nearly there can be 2 to the power m subsequence. So by linear, by linear search, we can get longest common subsequence. So it take big of 2 to the power. So it is going to take big of 2 to the power. So total time complexity is going to your, the total time complexity is first to find the total subsequence 2 to the power m. Now to check common subsequence n to the power m, and then it is going to be to find the maximum longest. So leading term is this, so it is going to be big of n to the power. It is going to be exponential, so we will not use this algorithm. So since it is going to be exponential, we are not going to use this way. We are not going to use this way. So we will check whether it is going to have a dynamic programming or not. Now before going to the approach of dynamic programming, here we have only find the subsequence of A. We are not finding the subsequence of B. So can anyone tell me the reason why we are not finding the subsequence of B? See, the thing is that we are finding the common subsequence. So when we are taking the subsequence of A, then we are going to the string B and checking whether it is a subsequence of B or not. So if it will come in the common, then it should also be the subsequence of B. I am going to take the common one, intersection one. Okay, I am going to take the intersection one. So if I am first finding the common subsequence of A, okay, then I am going to the B and I am checking whether it is a subsequence in B or not. So I will get this one. I will get this one. And that is going to be the intersection part, common subsequence. Okay, am I clear? So that's why here we are not finding the subsequence of B. Only we are finding the subsequence of A, and we are going to the string B and checking whether it is a subsequence of B or not. If it is a subsequence of B, if it is also in subsequence of B, then it is going to be the common subsequence. Since we need the common subsequence, that's why we are not finding individually the subsequence of A and individually the subsequence of B. Only we are finding the subsequence of A, and then we are going to the string B and checking whether it is a subsequence in B or not. Please let me know whether it is clear or not. We will check whether, since it is going to be exponential time, we will check whether by using dynamic programming can we solve. Okay, so now we are going to see that whether by using dynamic programming can we solve. So we will try to find whether it is having an optimal substructure, then recurrence relation, recurrence equation or solution, then overlapping subproblems. You know that to give a dynamic programming, we should have an optimal substructure. Optimal substructure says that, see, the main problem here is that they will give you two subsequence, sorry, they will give you two string and they will ask you what is the longest common subsequence, what is the longest common subsequence. So given a subsequence, if we directly do, given a string, if we directly do, then it is going to take exponential time. So what we are trying to do, we are trying to find whether we can apply dynamic programming or not. So if we'll use optimal substructure, if we'll have optimal substructure, then recurrence equation or solution and overlapping subproblem, then we can apply, then we can apply dynamic programming. Then we can apply dynamic programming. Okay. Okay. So that we can solve the recurrence, then overlapping subproblem. These three things, the conditions should be satisfied. Then we can apply overlapping subproblem. Okay. So first we are now going to see whether we are having an optimal substructure and recursive equation or not. Okay.
So now we are going to first see whether we are having a optimal, whether we are having a optimal substructure, whether we are having a optimal substructure and and recursive equation, whether we are having optimal substructure and recursive equation. So if you are able to write the main problem in terms of a smaller problem in such a way that the solution to the smaller problem is going to be the part of the solution to the main problem, then it is called as optimal substructure. What is optimal substructure? If we are able to write, so student get confused between this. If we are able to write, if we are able to, if we are able to write the, if we are able to write the main problem, if we are able to write the main problem, we are able to write the main problem in terms of, in terms of, in terms of a smaller problem, in terms of a smaller problem, in terms of a smaller problem, in such a way that, in such a way that, in such a way that the solution, the solution to the solution to the smaller problem, the solution to the smaller problem, the solution to the smaller problem is going to be the, is going to be the, to be the part of, to be the part of the, to be the part of the solution, to be the part of the solution to main problem, to be the part of the solution of main problem, then is called as optimal substructure. So if you're done with the writing, you can let me know. As optimal substructure, this is called as, this is called as optimal, optimal substructure. This is called as optimal substructure. Now, now let's take two DNAs. Now let's take, so we will try to first find the optimal substructure. So given is given a main problem, if you are able to write, if in terms of, if you are able to write the main problems in terms of a smaller problem in such a way that the solution of the smaller problem is the part of the solution of the main problem, then it is optimal structure. So if let's take two, let's take two DNA. Okay, one is X, which is having a string x1, x1, x2, x3 till xn. If we are having a DNAs like this, let assume another DNA Y, which is having a y1, 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 y2, y3 till yn, till yn. Okay. Now what we will do, we will check, see how we can reduce our bigger problem into a small problem. See, we will check whether xn is equal to yn and not, the last one. Whether, like if you are having 1 2 3 4 5, the indices here 1 2 3 4 5 6 or 7 like this, we will check the last one, it's n or it's m. I will make its m. Okay, I will check whether xn is equal to ym or not. If these two are equal, it means we get a symbol which is common in both, which is common in both, means we got a sequence which is common in both. If these two are equal, then in the remaining, in the remaining we will again check, we will again check. See, please let me know whether it is clear or not. So what we will going to do, we will check whether xn is equal to yam or not. If these two are equal, means we get a common symbol in both. Then in the remaining, then in the remaining, you check whether it is a common subsequence or not. Now in this common subsequence, whatever will be the, whatever, sorry, in this the remaining string, in this the remaining string, whatever will be the common subsequence, whatever we will get, like let us assume you got AB, and then we will append, let us assume x and c, we will append this ABC. See, here we are now able to reduce the, solve the big main problem in terms of a small problem. See how we are doing that. What we are doing, we are first checking whether the last two symbols are same or not. If last two symbols are same, then we are reducing the bigger problem into n minus 1 here till x1 to xn minus n minus 1, and here to y1 to yn minus 1. Just check whether in between these two what is the common subsequence. Let us assume in between these two, if the common subsequence is AB, after finding that, just append the last symbol C.
So the solution of a smaller problem is the part of the bigger problem. Means we are having a optimal substructure. Please let me know whether it is clear or not. थोड़ा difficult है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए, समझ में नहीं आया तो पूछिए. देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास दो डीएनए है, एक्स है, उसके अंदर सिंबल्स है आपके पास x1 x2 x3 टिल xn, और आपके पास दूसरा डीएनए है y जिसमें सिंबल्स है y1 y1 y2 y3 टिल yn टिल y. तो पहले हम क्या करें, हम लास्ट का जो सिंबल है वो देख रहे हैं कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं. अगर इक्वल है तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ है, कंपैरिजन कैसे होता है, और एक बार हाँ बता रहे. तो अगर ये दोनों जैसे देखेंगे, एक्स एन इज इट इक्वल टू वाई एम, लास्ट का दो सिंबल क्या इक्वल है. अगर लास्ट का दो सिंबल इक्वल है तो हम कॉमन सबसीक्वेंस कहां कॉल करेंगे, इन दोनों पे. अब हमारा बिगर प्रॉब्लम को हम छोटा कर दिए इन दोनों पे. मतलब पहले हमारा कॉमन सबसीक्वेंस था, कॉमन लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्वेंस एन और एम में था. हमने देखे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कॉमन सबसीक्वेंस इन दोनों पे पता कीजिए, इन दोनों पे पता कीजिए. अगर इन दोनों का कॉमन सबसीक्वेंस अगर हमें मिला, कुछ भी मिला, धर लीजिए हमें मिला ए बी और लास्ट सिंबल धर लीजिए सी है, तो इन दोनों का जो मिलेगा उसके बाद हम अपेंड कर देंगे सी, हमारा आंसर मिल गया. So we got an optimal substructure where we are writing the bigger problem, solving the bigger problem in terms of a smaller problem, and the solution of a smaller problem is the part of the main problem. कर दिए ना. तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कर दिए. क्लियर है सभी को? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर दीजिए. क्या करेंगे नाउ, दिस इज द वन सिनेरियो वी हैव सीन. Now let's assume, first scenario we have seen, if both are equal. Now if both are not equal, that xn is not equal to yn, then what we will do? We will check. See, now we are doing all the scenarios we have to consider. X you are having x1, x2, x3 till xn. Then y is having from here y1, y2, y3 till y. So if xn is not equal to yn, if last two symbols are not same, then what we will do, we will find the longest common subsequence between this whole and this. I will left this. This is one scenario. I have to take two scenarios. One can be I have to take the whole x and I have to compare with, like this. Let's assume this is the common subsequence. Then I have to take all the n symbols of this and here m minus 1, and another I have to take here till n minus 1 and here m. See, देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझिएगा. अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, एक से एक केस में क्या होगा कि हम x का पूरा पार्ट ले लेंगे, और y का ये m छोड़ के उससे कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कॉमन सबसीक्वेंस क्या हो रहा है. दूसरा में क्या करेंगे, y का पूरा पार्ट ले लेंगे, और x का लास्ट सिंबल छोड़ के हम देखेंगे कि x से, देखिए y का पूरा पार्ट ले लिया और x का n माइनस तक लिए, इन दोनों में से जो कॉमन सीक्वेंस आया, जो मैक्सिमम होगा, वो हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. अगर नहीं मिला तो, अगर इक्वल नहीं है तो. देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए. क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए. जब xn is not equal to yn, then this is going to be the scenario. We have to take two scenarios. One, we have to compare all the symbols of x with the y till y2 m minus 1, and another here I have to take n minus 1 and I have to compare with n. समझिए क्लियर बोल रहे हैं. तो ये सिनेरियो हमें मिल गया, मतलब तीन केसेस हो गए. अब एक क्या हो सकता है कि अगर आपको दो सीक्वेंस दिया गया है, अब देखिए सारे सिनेरियोस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा. नाउ दे हैव गिवन वन स्ट्रिंग x and they have given one other DNA y, and in DNAs they have given x1, x2, x3, xn, and here nothing. DNA सिंबल मतलब यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ कुछ है ही नहीं है. एक DNA उसमें कोई सिंबल है जैसे एम्प्टी, इन दोनों में कहाँ कुछ होगा, कॉमन सबसीक्वेंस जीरो हो गया ना. अगर कोई भी डीएनए का सिंबल जीरो है तो कॉमन सबसीक्वेंस जीरो हो जाएगा. क्लियर है ना, क्योंकि अगर कोई भी अगर जीरो हो गया तो कॉमन सबसीक्वेंस
जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो मिल गया, वी गॉट एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। नाउ वी हैव टू गिव ए रिकरेंस इक्वेशन। सो रिकरेंस इक्वेशन कैसे होगा, रिकरेंस इक्वेशन जैसे आपको दे दिए, मैं सी दे दिए, सी बता रहा है ऑप्टिमल सब कॉमन लॉन्गेस्ट, ये पता कर रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ये लास्ट है, मतलब 1 से 2 3 जा रहा है आई तक, और एक से एक का, और दूसरा जे तक, दूसरा जे तक 1 2 3 टिल जे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर या फिर आई जीरो हो या फिर जे जीरो हो, या फिर आई जीरो हो या फिर जे जीरो हो, तो लॉन्गेस्ट इन दोनों में से कोई किसी का भी अगर स्ट्रिंग का सिंबल जीरो होगा तो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या हो गया, जीरो। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस जीरो हो गया। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे आई इक्वल इक्वल टू जे और आई जे ग्रेटर देन जीरो है, दोनों का वैल्यू, दोनों का लास्ट, ये दोनों लास्ट का सिंबल्स है, इक्वल है, तो मतलब कि एक कॉमन सीक्वेंस हमें मिल गया है। बाकी अब i -1 और j -1 में आप पता कीजिए कि कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, कॉमन सब सीक्वेंस क्या है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, आई जे ग्रेटर देन जीरो है लेकिन आई नॉट इक्वल टू जे है, तो क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, आप इसका i -1 तक जाइए और j, और आप इसका क्या कीजिए, i से j -1 तक जाइए, दोनों सब सीक्वेंस पता कीजिए, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस देगा वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस। ये हो गया हमारा रिकरेंस इक्वेशन। तो रिकर्सिव इक्वेशन भी हमें मिल गया, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मिला, हमने उसका रिकर्सिव इक्वेशन भी दे दी है, रिकर्सिव इक्वेशन भी दे दी। अब हमें देखना है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। ये दो चीजें तो हमें मिल गया, अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी हमें मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आपका एक डीएनए है एक्स, जिसमें सिंबल्स जा रहा है आई तक, 1 2, ये एक्स हो गया, वाई 1 2 3 आई तक, एंड वाई 1 2 3 जे तक, जे तक गया। तो दोनों में से अगर आई जे जीरो रहा, मतलब किसी में है ही नहीं है कुछ, तो कॉमन क्या आएगा, जीरो। और आई इक्वल टू जे, ये दोनों मिल गया, मतलब आपको एक लेंथ वन का तो कॉमन सबसीक्वेंस मिल गया। बाकी रिमेनिंग में पता कीजिए, बाकी रिमेनिंग में पता कीजिए कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इसका i -1 तक और इसका j तक देखिए क्या कॉमन आ रहा है, और नहीं तो इसका पूरा लीजिए i, और इसका j -1 तक दीजिए। इन दोनों में से जो मैक्सिमम कॉमन सबसीक्वेंस आएगा वो हम लेंगे। ठीक है ना, देखिए क्लियर है कि नहीं, डाउट होगा तो बोलिएगा, क्लियर है कि नहीं बता दीजिए। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आज हम लोग करके जाएंगे, एक एग्जाम्पल तक करके ही जाएंगे। अब हमें पता करना है कि रेकरेंस ट्री क्या है, यूनिक सब प्रॉब्लम है कि मींस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें तीन चीज चाहिए, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मिल गया, रेकरेंस इक्वेशन मिल गया, अब हमें देखना है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। सो नाउ वी हैव टू सी रिकर्सन ट्री एंड यूनिक यूनिक सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग होगा तभी यूनिक सब प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें यूनिक सब प्रॉब्लम मिलता है, यहाँ पे हमें यूनिक सब प्रॉब्लम मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेता हूं, लेटस से let us assume the two DNAs, let us assume that we have two DNA given like so let us assume that we have two DNAs as shown below, कर देते हैं as shown below, as shown below। तो फर्स्ट डीएनए मैं ले लेता हूं एक्स, जिसमें है आपका ए। देखिए ये क्या मैं ले रहा हूं, बेस्ट केस ले रहा हूं, बेस्ट केस। देखिए यहाँ बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगी, हमेशा मिलते गया एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। वर्स्ट केस ये है जहां पे दो फंक्शन कॉल हो रहा है, देखिए ये एक फंक्शन कॉल, ये एक फंक्शन कॉल, आप ये इसे तो आप फंक्शन कॉल में कर सकते हैं, सी तो एक फंक्शन कॉल भी हम कर सकते हैं। रिकर्सिव इक्वेशन को आप रिकर्सिव फंक्शन में आप कर सकते हैं। if you are having Cij, you can call Ci-1j and then Cij-1. So first we are taking a base case. What is going to be the base case scenario? Base case scenarios will be when I is equal to j. दोनों सिंबल सेम आ रहा है, दोनों सिंबल सेम आ रहा है। So when I is equal to j, so I am taking x as one DNA as AAA and another DNA as y as AA.
a. So how you will call this function? So c you will call c4 and 4. c4 हम लोग कॉल करेंगे क्योंकि यहाँ सीक्वेंस है 1 2 3 4. ठीक है, तो हम कॉल करेंगे c4 में. c4 ये क्या होगा 1 प्लस c33. यह 1 प्लस आपको देने की दरकार नहीं है, बस मैं दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं. फिर ये क्या होगा 1 प्लस मिल जा रहा है, 3 3 भी तो मिल ही रहा है ना, हमेशा तो ये ही है, हमेशा मैच हो रहा है. तो ये 1 प्लस सी 2 2 पे कॉल हो गया. फिर मिल गया, फिर 1 प्लस ये सी 1 1 में हुआ. फिर मिल गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस सी 0 0. तो ये आपको 0 दे देगा, ये आपको 0 दे देगा. तो 0 प्लस 1 इज योर 1. 1 यहाँ 1 प्लस 1 इज योर 2. 2 प्लस 1 इज योर 3. 3 प्लस 1 इज योर. तो देखिए लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आपको क्या मिल गया 4. तो ये क्या है, ये है बेस्ट केस, ये है आपका बेस्ट केस. जब आपको हमेशा ही सेम सिंबल मिल जा रहा है, जब हमेशा ही आपको सेम सिंबल मिल जा रहा है. ठीक है, तो हमेशा सेम सिंबल मिल रहा है तो आपको ऐसा मिल गया. तो इसका हाइट क्या हो गया, इसका हाइट क्या हो गया +1 है. 1 2 3 4 5. तो इफ इट इज n देन n प्लस 1 हो. n प्लस 1 हो, इसका हाइट हो गया. n प्लस 1 इसका हाइट हो गया. ठीक है, अब देखिए मैं वर्स्ट केस लेता हूं. अब मैं वर्स्ट केस लेता हूं. वर्स्ट केस में क्या होगा, मैचिंग नहीं मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जाना, मतलब दो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. जैसे मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूं. वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस एनालिसिस. पहले हम लोग बेस्ट केस लिए, नाउ वी आर डूइंग वर्स्ट केस एनालिसिस. तो वर्स्ट केस एनालिसिस क्या है, जैसे एक्स मैंने लिए, उसके अंदर है आपका ए 4 ए ले लिए, और बी में ले, और वाई में मैं सिर्फ 4 बी ले लेता हूँ. वाई में मैं 4 बी ले लेता हूँ. वाई में मैं 4 बी ले रहा हूँ. 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी. अब क्या करेंगे, C4 करेंगे. मिला तो नहीं, तो दो फंक्शन कॉल होगा. एक क्या होगा, इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ. क्यों फंक्शन कॉल्स बहुत रहेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियोज है, दो दो फंक्शन कॉल होंगे, कहीं मैच होगा ही नहीं. तो C4 आप कॉल किए तो आपको मैच नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, दो फंक्शन कॉल करेंगे. एक जाएगा C3 4, एक आई वाला रिड्यूस किए, एक में आप जे वाला रिड्यूस किए, फिर इसको किए. वर्स्ट केस 3 4 है, तो फिर मैच नहीं हुआ. 3 4 भी देखिए कहीं पर भी मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब अलग अलग सिंबल ले लिए. हाँ, तो अब क्या होगा, यहाँ एक रिड्यूस किए तो ये ऐसे हो गया, अब एक यहाँ कर दिए, तो 3 3. ठीक है, फिर इसको करेंगे, रुकेंगे कहाँ हम देखिएगा. फिर 2 4 है, यहाँ 1 4 हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या होगा 2 3 हो जाएगा. फिर यहाँ एक में 0 हो गया, और एक में 4 हो गया, और एक में 1 हो गया, और एक में 3 हो गया. देखिए रुकना यहीं पे है, क्योंकि किसी एक में अगर 0 आ गया, किसी एक में अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो सबसीक्वेंस, इसका सबसीक्वेंस क्या हो गया है 0. तो यहीं पे हम रुकेंगे, यही 0 देगा. फिर इसका 1 3 का करेंगे, फिर इसका 1 3 का करेंगे, तो इसका क्या आएगा 1 3 का 0 3, और यहाँ पे फिर आ गया आपका 1 2 1 2. फिर 1 2 का करेंगे, बहुत बड़ा आ जाएगा. 1 2 का हुआ, फिर 1 2 का क्या होगा, मैं इसको, एक तो यहाँ पे हो गया ना 1 2. अब इसका क्या होगा, एक 0 हो गया 0 2, और एक का हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा 1. अब जाके यहाँ रुकेगा. यहाँ हो गया 0 1, और यहाँ हो गया C 1 0. ठीक है, अब इसी तरह 2 3 का करेंगे, इसी तरह 2 3 का करेंगे. ठीक है, इसी तरह 2 3 का करेंगे, 3 3 का करेंगे. ठीक है, 3 3 का करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बहुत बड़ा जाता जाएगा, बहुत बड़ा जाता जाएगा. तो यहाँ C हो गया आपका 2 3, फिर C आपका हो गया यहाँ 3 2. ठीक है, फिर देखिए 2 3 यहाँ मिल गया, 2 3 देखिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है. यहाँ पर भी 2 3 है, देखिए आपको ओवरलैपिंग सब, यहाँ पर भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है, मतलब एक ही बार करेंगे. ठीक है, अब यहाँ जैसे 4 3 है, तो 4 3 को आप कैसे करेंगे, C 3 2 3 2, सॉरी 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 4 2 4 4, एक होगा 4 2, एक होगा 4 2, और दूसरा होगा यहाँ पे 3 2.
देखिए 3 2 आपको यहाँ भी मिल गया, देखिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है, 3 2 यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, बहुत सारी आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिलेंगे। जैसे और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं जैसे 4 2 को अगर हम फिर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 3 1 मिल जाएगा और 4 1 भी मिल जाएगा। तो हाँ, इसको फिर करेंगे, देखिए इसको फिर करेंगे तो यहाँ पर भी 3 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 3 1 मिल जाएगा। तो आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई डायनेमिक सब प्रॉब्लम, डायनेमिक सब। तो वर्स्ट केस में कितना होगा हाइट ऑफ द ट्री, बेस्ट केस में हाइट ऑफ द ट्री क्या हुआ, बिग ऑफ n+1। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। Now, if you're done with the writing, then you please let me know. I will go analyze the worst case scenario. तो इस तरह ये जाते जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो if we'll go and if we'll see this, then it will have total how many nodes? 2 to the power n+n. पहले हाइट पता करते हैं, पहले हाइट पता करते हैं तो पता चलेगा। तो इन वर्स्ट केस इफ यू आर हैविंग सी एन एम, वर्स्ट केस हम कैसे पहुंचेंगे, एक बार इसको रिड्यूस करेंगे, ऐसे आया Cn-1 m, फिर एक बार इसको रिड्यूस करेंगे m-1, फिर एक बार इसको रिड्यूस करेंगे, उसको छोड़ देंगे n-2, फिर एक बार इसको रिड्यूस करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या होगा वर्स्ट केस में, ये n नंबर ऑफ टाइम्स हुआ, फिर ये m नंबर ऑफ, इंडिविजुअली हो रहा है, दोनों एक बार में नहीं हो रहा है, एक बार n एक बार m। सो ऐसे करते करते या फिर उसको C0 यहाँ कुछ मिलेगा, या फिर यहाँ पे कुछ मिलेगा, या 0 मिलेगा। तो ये हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया, n+n। देखिए वर्स्ट केस में तो यही होगा ना, अगर एक बार में n का रिड्यूस किया तो m को छोड़ दिया, फिर n को छोड़ दिया, m को कर दिया, फिर उसी तरह कर रहे हैं, n को रिड्यूस कर m को उसी तरह रख रहे हैं, फिर n को छोड़ दिए, n को उसी तरह रख रहे हैं, m को रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मैं C4 4 का लेता हूं, वर्स्ट केस में क्या होगा, देखिए 8 आएगा वर्स्ट केस में, 8 आएगा वर्स्ट केस में, 8 आएगा, ठीक है। पहले एक बार मैं इसको रिड्यूस किया 3 4, फिर दूसरे बार क्या किया, इसको इसी तरह रखा, इसको रिड्यूस किया 3, फिर एक बार क्या किया, इसको रिड्यूस किया 2, इसको 3, फिर एक बार क्या किया, इसको इसी तरह रखा, इसको रिड्यूस किया, फिर एक बार क्या किया, इसको रिड्यूस किया, इसको इसी तरह रखा, फिर दोनों को इसको रिड्यूस किया, दोनों को हम एक बार में कर ही नहीं रहे, फिर एक बार इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 हो गया ना। तो बीगो 4+4, तो बीगो इज n+m, ये हो जाएगा। तो वर्स्ट केस में हाइट हो गया इसका n+, और अब जानते हैं इफ हाइट इज योर n+m, इफ हाइट इज योर h, then number of nodes is going to be 2 to the power h minus 1, number of nodes is going to be 2 to the power h minus 1. So if height is in worst case, if height is n+m, then number of nodes, then number of nodes, the number of nodes is going to your is going to be, the number of nodes is going to be 2 to the power n+m। अब इंडिविजुअली भी अगर हर प्रॉब्लम को करने के लिए कांस्टेंट टाइम भी लगेगा, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बीगो ऑफ 2 to the power n+m इनटू कांस्टेंट 1। सो ये भी तो एक्सपोनेंशियल ही हो गया। अगर डायरेक्टली हम ऐसे कर दिए तो ये भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम सिर्फ यूनिक प्रॉब्लम के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो है। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम यूज ना करें, तो अगर इस केस में करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बीगो ऑफ 2 to the power n+, बीगो ऑफ 2 to the power n+, because we have seen that total number of function call that we require is big O of 2 to the power n+m, and for each function call it will take constant time। क्यों constant time लग रहा है, क्योंकि वहां पे constant time क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ कंडीशन चेक करेंगे i इक्वल टू j है क्या, अगर ये रहेगा तो 1, फिर इसके बाद इसको कॉल कर देंगे, नहीं रहेगा तो इन दोनों को कॉल करेंगे। कंडीशन चेकिंग है, सिर्फ कंडीशन चेकिंग है, फिर दूसरा फंक्शन कॉल है। तो हर केस में कांस्टेंट टाइम लगेगा, हर केस में कांस्टेंट टाइम लगेगा। देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं है तो फिर इन दोनों में चल जाएंगे।
तो हमारा टोटल फंक्शन कॉल इतना हो जाए, इसीलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। देखिए अब तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, क्लियर है तो बताइए, अब तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनीवन स्टिल हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो। नाउ वी आर गोइंग टू implement dynamic programming and we will see what are the unique sub problem we are having. यूनिक सब प्रॉब्लम इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, हम सारी यूनिक कॉम्बिनेशन जो जो हो सकते हैं वही हमारा यूनिक सब प्रॉब्लम हो जाएगा, वही हमारा यूनिक सब प्रॉब्लम हो जाएगा, बस उसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जाते हैं अब यूनिक सब प्रॉब्लम के। सो द यूनिक सब प्रॉब्लम, द यूनिक द यूनिक सब, so the unique problems, सिर्फ यूनिक प्रॉब्लम्स ही लिखते हैं। यूनिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो, the unique problems are, यूनिक प्रॉब्लम्स क्या होगा, 3 3 होगा, 3 3, फिर 3 2 होगा, फिर 3 1 होगा, ठीक है, फिर 2 3 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 1 होगा। यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ और इधर वाला रिड्यूस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं 1 लिखा, 1 3, फिर 1 2, फिर 1 1 लिख दिया। ये विदाउट जीरो वाला। अब जीरो वाला क्या होगा, 1 0, 2 0, देन 3 0, फिर आपका है, देखिए जब 3 सिंबल्स थे तब, जब 3 थे तब, ठीक है, जब 3 सिंबल्स है, जब 3 सिंबल्स है x1 x2 x3, तब कर रहा हूँ y y1 y2 y3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 1, ये भी हो सकता है, 0 2 हो सकता है और 0 3 भी हो सकता है। और अब ये भी केस हो सकता है 0 0, लेकिन 0 0 तभी होगा बेस्ट केस में होगा, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तभी दोनों रिड्यूस होके दोनों एक बार रिड्यूस होंगे, तो ये बेस्ट केस में ही होगा। लेकिन यूनिक सब प्रॉब्लम आपको इतने ही मिलेंगे। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 12 15 16 यूनिक प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, 16, ठीक है। और आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, आप कोडिंग को इस तरह कीजिए कि जहां भी अगर किसी एक का भी जीरो है तो आप उसको यूज ना कीजिए। तो आपकी यूनिक सब प्रॉब्लम अगर साइज 3 है, इसका भी साइज 3, तो 3 × 3 मतलब जो रहेगा n × m, n × m रहेगा, n × m। तो यूनिक सब प्रॉब्लम इज गोइंग टू योर n × m, because this you can write the code in such a way that if any one is 0 then its common subsequence is going to be 0. Am I clear till now? Is it clear to all of you? Fine. If you are having doubt, you please ask me, otherwise I will go ahead. So if we have, so if we have mn, अगर हमारा mn है, that is x is of size m, and y is of size n, then number of unique problem, the number of unique problem will be, unique problem कितने हो जाएंगे, will be m into n, ठीक है। then number of unique problem is going to your m into। अब देखिए करेंगे कैसे इसे सॉल्व, यूनिक प्रॉब्लम तो हमें m into n पता चल गया, तो हम करेंगे कैसे। we could actually construct a table, हम एक टेबल बना सकते हैं, we could actually construct a table, and in that table and in that table and in that table we and in that table we can compute, and in that table we can compute each of the सब प्रॉब्लम। हम एक टेबल बना देंगे, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये बॉटम अप में करते हैं। वी कुड एक्चुअली कंस्ट्रक्ट ए टेबल, हम टेबल बना सकते हैं। इन दैट टेबल वी कैन कंप्यूट ईच ऑफ दी सब प्रॉब्लम, हम हर सब प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट सॉल्व करेंगे। ईच ऑफ दी सब प्रॉब्लम यूनिकली, सारे यूनिकली, रिपीटेशन वाले नहीं। एंड then we can store them, then we can store the value, हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे, स्टोर दी वैल्यू। और नेक्स्ट टाइम जब उसको यूज करना रहेगा हम वहीं से ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम when the same problem is called, next time when the same problem is called
we could we could refer we could refer to that we could refer to the table. हम टेबल को रिफर करेंगे एंड यूज इट और यूज करेंगे एंड यूज इट और वी कुड सिंपली और हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यूज कर सकते हैं बॉटम अप वी कैन सिंपली यूज द बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। चलिए लिख लिए होंगे तो बोलिएगा। तो हम क्या करेंगे, वी कुड एक्चुअली कंस्ट्रक्ट, हम टेबल बनाएंगे एंड इन दैट टेबल सो हमने देख लिया हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर था, रिकर्सिव इक्वेशन भी था और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी था। So we can apply dynamic programming and reduce the time complexity. So it is not going to take exponential time. So we could actually construct a table. हम एक टेबल बनाएंगे and in that table we can compute each of the सब प्रॉब्लम uniquely. और हम इस टेबल में हर प्रॉब्लम की यूनिकली कंप्यूट करेंगे और उसका वैल्यू को स्टोर कर देंगे and then we can store the value. And next time when the same problem is called, जब same problem called होगा we could refer to that table. हम उस टेबल को रिफर करेंगे and use it और we could simply use the और हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, यूज दी बॉटम अप तो बॉटम अप भी कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी, ये टॉप डाउन भी आप कर सकते हैं। हाँ लेस टाइम ही रहेगा। बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्राम बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाए, अगर लेंथ 3 है तो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ लेंथ 0 1 2 3, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ x यहाँ y, इस तरह करके हम बना देंगे। तो ये हो गया 0 0, फिर ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 2, जैसे हम i-1 और i पे करते थे वही 0 3, ये हो गया 1 0 2 0 3 0 3 1 सॉरी 1 1 1 2। अब ये तो हो जाएगा लेकिन अब किस ऑर्डर पे कंप्यूट करेंगे ये भी ध्यान देना। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, इस तरह जा रहा है। अब हम किस ऑर्डर पे इसे कंप्यूट करेंगे उस पे भी हमें ध्यान देना है। 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, 0 2 हुआ, 0 3 हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपने तो 0 0 कर दिए, 0 1 भी कर दिए, 0 2 भी कर दिए, तो क्या मैं 1 1 जब कंप्यूट करूंगा तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर 1 1 मतलब कोई सिंबल अगर मैं लूं, अगर वो मैच हो गया, देखिए आप रिकरेंस इक्वेशन देखिए, अगर मैच हो जाता है एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस दोनों को रिड्यूस कर देते थे, तो i-1 और j-1। तो अगर 1 1 रहेगा तो हम क्या रिक्वायर्ड होगा 0 0 ये वाला, या फिर अगर नहीं रहा तो हम किस में जाते, एक इसका रिड्यूस करते हैं, इसका 1, अगर 1 1 है, अगर मैं 1 1 लेता हूं तो क्या होगा 1 0 या फिर 0 1, तो या फिर लेफ्ट का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा या फिर अप का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। टू कंप्यूट 1 1 वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ दिस वन और दिस वन और दिस वन, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हमें लेफ्ट वैल्यू उसका रिक्वायर्ड हो सकता है या फिर अप वैल्यू या फिर डायगोनल वैल्यू। तो हम क्या कर, देखिए ये तो सिंपल है, पता है कि ये जीरो ही होगा, अगर जीरो है किसी एक में भी तो जीरो होगा। अब उसके बाद मैं क्या कंप्यूट करूं, 1 1 करूं कि 1 2 करूं कि 2 1 करूं। अब 1 1 कर सकते हैं, 1 1 कर सकते हैं, 1 1 करने के बाद आप या फिर 2 1 कर सकते हैं या फिर 1 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 कंप्यूट करने के लिए आपको आप लेफ्ट और डायगोनल चाहिए, इसका कंप्यूट है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए। आप डायरेक्टली 3 3 कंप्यूट करने जाएंगे तो आपको इसका 3 2 या 2 2 या 2 3 का वैल्यू लगेगा, तो डायरेक्टली 3 3 का कंप्यूट करने मत चल जाइए, या फिर 1 1 का पहले कीजिए, 1 1 के बाद 1 2 कीजिए, तो या फिर रो वाइज रो कीजिए या फिर कॉलम वाइज कॉलम कीजिए, क्योंकि ये कर लिए तो फिर जब 2 1 कंप्यूट करेंगे तो अप का रिक्वायर्ड होगा या लेफ्ट का या फिर डायगोनल का, फिर जब 3 1 का करने जाएंगे तो या 3 0 या फिर 2 1 या फिर इसका। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं। सो यू कैन कंप्यूट आदर इन ए रो मेजर ऑर्डर और इन ए कॉलम मेजर ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनाना रहे तो आप या फिर रो मेजर जाइए या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर जाइए। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइए। एवरी टाइम, सो एवरी वैल्यू डिपेंड्स, सो हर वैल्यू किस पे डिपेंड्स करेगा, सो एवरी वैल्यू डिपेंड्स ऑन आदर डायगोनल वैल्यू, आदर डायगोनल एलिमेंट और above एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट, और above एलिमेंट और above एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट, या फिर लेफ्ट एलिमेंट ऑन दी above और लेफ्ट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। देखिए डायगोनल में हम क्या करेंगे, जब मिल जाएगा तो 1 प्लस इसको ऐड करेंगे, और अगर जब मैच नहीं होता तो इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम। देखिए रिकरेंस क्या बोल रहा है, अगर मैच करेगा तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट पे जाएंगे, अगर मैच करेगा तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट पे जाएंगे। अगर मैच किया, कहाँ गया रिकरेंस, अगर मैच किया तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट पे जाएंगे। अगर मैच नहीं किया तो ये कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है और ये अप में जा रहा है, तो लेफ्ट और अप का मैक्सिमम लेंगे, लेफ्ट और अप का मैक्सिमम लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह करना है हमें। on the above element on the above element and left element we take the maximum, of these two, हम मैक्सिमम लेंगे। ओके, क्लियर है। यूनिक सब प्रॉब्लम हमारे कितने हो गए, आप बोल सकते हैं सर ये तो m इंटू एन नहीं हुआ, m3 था, n3 था, ठीक है आप कह सकते हैं, क्योंकि m इंटू एम प्लस वन, एक्चुअली क्या हो रहा है, यूनिक सब प्रॉब्लम m प्लस वन इंटू एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी हम ले रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यूनिक सब प्रॉब्लम इज गोइंग टू योर m प्लस वन इंटू एन प्लस वन, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो लीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, एम एन, फिर एम, फिर ये क्या हो गया, एम एन हो गया, फिर एम हो गया, फिर ये क्या हो गया, एन प्लस वन। तो लीडिंग टर्म हमारा एम एन ही हो जाता है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So number of unique sub problem is going to your m in. Number of unique sub problem is going to your m. Clear है? तो नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम इज गोइंग टू m। यूनिक सब प्रॉब्लम भी हमें पता चल गया, हमें कैसे डायगोनली कंप्यूट करना है वो भी हमें पता चल गया। तो हमें डायगोनल एलिमेंट चाहिए, लेफ्ट चाहिए और अप चाहिए। तो या फिर वी कुड गो अदर इन, so we could compute either row major order, so it means we could compute, ये याद रखना है कैसे आप कंप्यूट करेंगे, गेट में भी पूछता है। so it means we can compute, it means we could compute either row major, either row wise row or column wise column, could compute either, so we could compute either row major, रो वाइज और कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एरे वाला आ जाएगा, रो वाइज और कॉलम। अब देखिए इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको कितना लगेगा, आपको तो प्रॉब्लम्स है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता चल गया कि बिग ऑफ एन प्लस एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कितना लगेगा, बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा आपको। यहाँ पे कोई भी एक को सॉल्व करने के लिए वन प्लस कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, इसका ये ले दोनों मैक्स जा रहे हैं, तो किसी भी एक को कंप्यूट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम। सो टोटल सब प्रॉब्लम है m इंटू एन, कांस्टेंट टाइम कर रहे हैं तो आपका हो गया बिग ऑफ m प्लस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका हो गया बिग ऑफ m प्लस n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी सेम, बोथ m n होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। ये था डायनेमिक अप्रोच, दैट इज बॉटम डाउन अप्रोच। इफ यू यूज नाउ टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टॉप डाउन अप्रोच में भी दोनों में सेम ही रहेगा। टॉप डाउन अप्रोच में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, एसिम्प्टोटिक वाइज सेम ही रहेगा, लेकिन आपको पता है टॉप डाउन अप्रोच में हम देखते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल होता है, उसमें कॉल करने से पहले देखते हैं कि उसका वैल्यू है कि नहीं उसमें। तो यूनिक फंक्शन कॉल तो इतना ही होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिकर्सन इन वर्स्ट केस इट इज गोइंग टू टेक whatever will be the height of the tree, that is going to be the size of the stack required, that is going to be m plus n. एसिम्प्टोटिक वाइज आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा big of m plus n into space complexity is going to your big of m plus n for stack recursion call plus big of mn क्यों, क्योंकि ये था आपका साइज टेबल के लिए, तो लीडिंग टर्म आपका mn ही है, क्लियर है ना। टू इंटू थ्री, 2 + 3 5 होता है, लेकिन 2 × 3 6 होता है, 4 + 4 is your 8, but 4 × 4 is your 16. The leading term is the multiplication one. So mn is the leading term. क्लियर है ना। देखिए ये समझ में आया कि नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, आपको रिकर्शन ट्री रहेगा, तो रिकर्शन ट्री का हाइट वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, बिग ऑफ m प्लस n। अपने देखे हैं वर्स्ट केस में आपका ये वाला ना, वर्स्ट केस में आपका बिग ऑफ m प्लस n हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन के लिए आपको m प्लस n होगा, और टेबल के लिए आपका हो जाएगा mn। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एसिम्प्टोटिक वाइज तो आपका mn ही हो जाएगा ना, एसिम्प्टोटिक वाइज तो आपका mn ही हो जाएगा, एसिम्प्टोटिक वाइज आपका mn ही हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका mn हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी mn, लेकिन एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड मोर इन टॉप डाउन अप्रोच, बट एसिम्प्टोटिक वाइज बोथ आर सेम, देखिए अब तक क्लियर है कि नहीं। अब मैं एग्जांपल लूंगा, अब तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन और लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस हमने दोनों देखे। चेन मल्टीप्लिकेशन में क्या था, कोई कंडीशन चेकिंग नहीं था, हम सारे सारे कंप्यूट करते थे, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में कंडीशन चेकिंग है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। चेन मल्टीप्लिकेशन चेन मल्टीप्लिकेशन मेथड चेन मल्टीप्लिकेशन मेथड is different is different is different from longest the longest longest common subsequence the longest common subsequence, because in chain multiplication because in chain multiplication because in chain multiplication because in chain multiplication method we didn't rule out we didn't rule out we didn't rule out any of the possibility, हम कोई भी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं करते, we didn't rule out any of the possibilities, but in longest common subsequence we are able to we are able to rule out we are able to rule out we are able to rule out some of the possibilities based on the condition, some of the possibilities based on some कंडीशन, कुछ कंडीशन पे हम रूल आउट करते हैं। चलिए हो गया होगा तो बोलिएगा। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड क्या है, इन चेन मल्टीप्लिकेशन मेथड we don't have any condition, कोई कंडीशन हमारा नहीं होता है, we don't have any condition checking, but in longest common subsequence we have condition checking, so these are the main difference
these are the main difference between. अब एग्जांपल लेके देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग दोनों देख लिए। दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल एक है आपका ए बी। एक मैं डीएनए ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ ताकि समझ में, फिर बड़ा लूंगा। वाई है आपका ए सी ए, ठीक है। एक में ले लिया ए बी, एक में ले लिया ए सी ए। आप क्या कीजिए, एक तरफ आप एक्स लिखिए, दूसरी तरफ वाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स में क्या है ए बी, और यहाँ वाई, वाई में आपका हो गया ए सी ए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट छोटा रहेगा तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या है, लेकिन इसी तरह करेंगे तो सही रहेगा। तो ये तो जीरो रहता है, आपको पता है। इसे लिख दीजिए 0 1 2 3, फिर यहाँ 0 1 2 3। तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो, यहाँ यहाँ पूरा जीरो, यहाँ पूरा जीरो। अब देखिए ये दोनों में मैच, ए में मैच है, तो क्या है 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट। तो ये इधर से आया। ए सी में मैच नहीं है तो लेफ्ट लेफ्ट या टॉप लेंगे, मैक्सिमम 1 मैक्सिमम लेंगे। ए और में मैच है तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट। ये यहाँ से आया डायगोनल एलिमेंट, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब ए और ए में मैच है तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट 1। ए सी में मैच नहीं है तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम 1। ए में मैच है तो क्या करेंगे, 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट, 1 + 1 = 2, तो ये मैच हो गया। अब बी और ए में क्या है, मैच है नहीं है, तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम लेंगे 1। बी सी में क्या है, लेफ्ट और टॉप में मैक्सिमम 1। ए बी और सी में क्या है, मैच नहीं है, तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम 2। तो आपको क्या मिला, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आपको मिला, लेंथ 2। तो वो कौन सा स्ट्रिंग मिला, ये 2। कैसे आया 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपको मैच था, आपको राइट साइड में लिखना है, राइट साइड से लिखना है। ए मिला, ए लिख दिया। फिर ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से मिला ए, तो ये क्या ए से इक्वल है, नहीं। फिर ये कहाँ मिला, यहाँ से आया। फिर ए और ए मैच था, जैसे ही मैच रहेगा आप लिख दीजिए। तो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस आपका ए हो गया, सीक्वेंस आपका ए हो गया। आपसे पूछेंगे कितने सब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है और उसका लेंथ क्या है। लेंथ आपका 2 है और कॉमन सब सीक्वेंस आपका ए है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हमने इस तरह किए, और जब भी मैच मिल रहा है, सो वेन एवर वी आर गेटिंग ए मैच, तो हमने लिखे कैसे, वेन एवर देयर इज ए मैच, जब भी मैच रहेगा, वेन एवर देयर इज ए मैच, वी कीप वी कीप ऑन वी कीप ऑन राइटिंग। 1 सेकेंड सर, ठीक है, एक बार और कर देते हैं, एक बार और बताते हैं। देखिए एक बार और बताते हैं। गेट एग्जाम में आपको इसी तरह ही करना है। एक तरफ एक्स लिख दीजिए, एक तरफ वाई लिख दीजिए, एक तरफ एक्स लिख दीजिए, एक तरफ वाई लिख दीजिए, ठीक है। एक तरफ एक्स, दूसरी तरफ वाई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया, अब एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। एक तरफ एक्स लिखिए, दूसरी तरफ वाई लिखिए। एक्स यहाँ पे था ए बी, आपने लिख दिए ए बी। वाई आपका इधर था ए सी ए, लिख दिए। सीक्वेंस क्या होगा, 0 1 2 लिख दिए, 0 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये दोनों मैच है, ये लिख रहे हैं। आप हमेशा टॉप टू रो वाइज जा सकते हैं या कॉलम वाइज जा सकते हैं, तो मैं रो वाइज जा रहा हूँ। देखिए मैच हो गया, तो मैच हो जाने का क्या होता था, 1 + c i - 1 और j - 1। तो 1 तो हो गया, 1 + दिस डायगोनल, तो 1। अब ए और सी में मैच नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट या टॉप का मैक्सिमम लेते हैं, 1 लिख दिए। फिर ए और ए में मैच है तो क्या करेंगे, 1 + डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट 1 ही, 0 है तो 1। फिर इसमें भी क्या है, मैच है, ए और ए मैच है, तो 1 + डायगोनल एलिमेंट। ए और सी में मैच नहीं है, ए और सी में मैच नहीं है, तो क्या करेंगे, अप और लेफ्ट का मैक्सिमम लेंगे, 1 ही है। अब इसमें मैच है तो 1 + डायगोनल एलिमेंट 2 हो गया। अब बी और ए में क्या है, मैच नहीं है, बी और ए में मैच नहीं है, तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम 1। बी और सी में क्या है, मैच नहीं है, तो टॉप टॉप और लेफ्ट का मैक्सिमम 1। बी और ए में क्या है, मैच नहीं है, तो
हम क्या लेंगे, लेफ्ट या टॉप का वैल्यू लेंगे मैक्सिमम, लेफ्ट या टॉप का मैक्सिमम। तो अभी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस हमारा उसका लेंथ हो गया 2। अब स्ट्रिंग क्या मिला हमें, कॉमन सब सीक्वेंस हमें क्या मिला, कॉमन सब सीक्वेंस हमें क्या मिला, पहले हमें दो दो कैसे आया, पहले इसके पास गए, ये दो कहाँ है, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या था, मैच था ए, तो आप लिखिए राइट साइड से लिखिए, पहले ये लिख दिए। फिर यहाँ पे दो कैसे आया, इससे आया 1 प्लस, यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि मैच था 1 प्लस किया। अब यहाँ पे 1 कैसे आया, मैच नहीं है, इन दोनों का लेफ्ट लेके, फिर 1, फिर इन दोनों में कैसे आया 1, मैच था, तो मैच था, ए लिख दिया यहाँ से। इस तरह आपको लिखना है कि कौन सा सबसीक्वेंस, आपको जो सबसीक्वेंस मिल रहा है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, whenever there is a match we keep on writing, we keep on writing। अच्छा, ये प्रीवियस स्लाइड आप लिख चुके हैं, तो मतलब प्रीवियस स्लाइड क्या आप लिख चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड क्या आप लिख चुके हैं, ये स्लाइड हो चुका है क्या आपका, whenever there is a match we keep on writing the letter, अब लेटर को लिखते हैं, but but remember but remember remember that but remember that we should write it from राइट टू लेफ्ट, लेकिन हम इसे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, वी शुड राइट इट फ्रॉम राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर, ये भी हो गया होगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, फिर कल करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा बड़ा लेंगे, छोटा अभी लिए अब बड़ा लेंगे। एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 2, एक्स है, इसमें ए बी सी बी डी ए बी, ठीक है, और वाई है आपका बी डी सी ए बी ए। हमने आपको कहे थे कि इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ये आप लिख लीजिए, लेट अस से टू डीएनएस एक्स एंड वाई आर गिवन, ये एक्स एंड वाई है। अब इसका टेबल बनाइए, ठीक है, एक्स यहां बनाइए, यहाँ पे एक्स बनाइए, एक्स में क्या है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, फिर ए है, फिर बी है। वाई में आपका क्या है, बी डी सी ए बी ए, ठीक है। तो अब दो स्ट्रिंग आपको दिया है, उसमें आपसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बता रहे क्या है। ये सब एनईटी में आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का लेंथ क्या है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 है तो 0 0 हो गया सब जगह, इधर भी 0। अब देखिए, ए और बी में क्या इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम, ए और नहीं है, लेफ्ट और टॉप, ए सी नहीं है, लेफ्ट और टॉप, ए में देखिए मैच है, ए में मैच है, तो 1 प्लस डायगोनल, ए और डी में देखिए मैच नहीं है, तो टॉप टॉप और लेफ्ट का मैक्सिमम, ए और ए में मैच है तो 1 प्लस डायगोनल, ठीक है ना, बी बी में मैच है तो 1 प्लस डायगोनल, बी डी में मैच नहीं है तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम 1, ये बी सी में मैच नहीं है, बी सी में मैच नहीं है तो टॉप और लेफ्ट का मैक्सिमम, बी ए में मैच, बी और ए में क्या मैच है, हाँ, नहीं है, तो लेफ्ट और टॉप का 1, बी बी में क्या मैच है, हाँ है, तो 1 प्लस डायगोनल 2, 1 प्लस डायगोनल 1 है तो 2 हो गया, बी और ए मैच नहीं तो टॉप और लेफ्ट का मैक्सिमम 2, फिर सी और बी में क्या मैच है, नहीं है, तो इसका और इसका मैक्सिमम 1, देखिए मैं कर रहा हूँ, अब मैच हो गया 1 प्लस 1 2, अब सी और ए में क्या मैच है, नहीं है, तो मैक्सिमम 2, सी और बी में मैच नहीं, मैक्सिमम 2, सी और ए में मैच नहीं, मैक्सिमम 2, लेफ्ट और
टॉप का मैक्सिमम। बी और बी में मैच है, बी और बी में मैच है, तो 1 प्लस क्या हो गया, डायगोनल। बी और बी में मैच है, 1 प्लस डायगोनल। बी और डी पे मैच नहीं है तो लेफ्ट और टॉप का मैक्सिमम। बी और सी में मैच नहीं है, बी और ए में मैच नहीं है, बी और बी में मैच है, तो 1 प्लस डायगोनल 3। बी और ए में क्या है, मैच है क्या, बी और ए में मैच है, नहीं है, तो मैक्सिमम लेंगे लेफ्ट और टॉप। इसी तरह आपको करना है। डी और बी में क्या है, डी और बी में क्या मैच है, नहीं, डी और बी में मैच नहीं है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट या टॉप का मैक्सिमम 1। डी और डी में मैच है, हाँ, तो 1 प्लस लेफ्ट 2। फिर डी और सी में क्या मैच है, नहीं है, तो लेफ्ट या टॉप का मैक्सिमम। मैच नहीं है मैक्सिमम, मैच नहीं है मैक्सिमम 3, मैच नहीं है मैक्सिमम 3। अब ए देखिए, ए है यहाँ पे, यहाँ तक तो मैच नहीं है तो मैक्सिमम लेंगे 1, ऐसे जल्दी होगा 2 मैक्सिमम। यहाँ मैच ए और ए मैच है, तो 1 प्लस डायगोनल 3। फिर ए और बी में क्या है, मैच नहीं है, फिर ए और ए में मैच है, तो 1 प्लस डायगोनल, 1 प्लस डायगोनल 4। अब देखिए बी है यहाँ पे मैच है, तो 1 प्लस दिस ले लिए। फिर बी और डी में मैच, यहाँ तक मैच नहीं है तो मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम। मैच नहीं है मैक्सिमम, यहाँ मैच आ गया तो 1 प्लस डायगोनल 4। फिर यहाँ पे मैच नहीं है तो इन दोनों का मैक्सिमम 4। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए, देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए। अब क्या है, हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस हमें मिल गया, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का लेंथ हमें 4 मिल गया है। तो कौन कौन सा सीक्वेंस है, जैसे ये 4 मिला हमें, 4 कैसे मिला, मैच नहीं था, तो ये पाथ भी जा सकते हैं या ये पाथ भी जा सकते हैं, दोनों पाथ, दो पाथ है हमारे पास, तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। पहले ये कंसिडर करते हैं, यहाँ 4 कैसे मिला, मैच था, जैसे ही मैच मिलेगा हम लिख देंगे, ए लिख दिए, ए लिख दिए, ये यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया। अब 3 में देखिए, यहाँ डी है, यहाँ भी है, मैच नहीं है तो इधर गए थे। फिर यहाँ पे हमें 3 मिला, ये बी और बी मैच है तो बी लिख दिए। फिर यहाँ पे गए, कैसे आ रहा है वो लिख रहे हैं कि फिर बी मिल, यहाँ 2 है, 2 कैसे आया, मैच नहीं है, यहाँ गए। फिर यहाँ सी और सी मैच है, सी लिख दिए, देखिए यहाँ सी है और यहाँ सी है, मैच है, यहाँ यहाँ आया। फिर 1 देखिए मैच नहीं है तो यहाँ गए थे। फिर मैच था, देखिए लिख दिया यहाँ से, आपको मिल गया, स्ट्रिंग भी मिल गया जो आपको चाहिए था, स्ट्रिंग भी मिल गया जो आपको चाहिए था। अब ये तो ये आपको मिला, ये बात अगर किए तो अब ये बात करते हैं, यहाँ 4 आया, अब यहाँ 4 में क्या मैच है, हाँ मैच है, देखिए इस ये बात तो कर लिए ना, ये बात 4 में मैच था तो बी बी मिला। एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिल सकता है, लेकिन लेंथ तो उसका 4 ही है, लेंथ 4 ही है, लेकिन एक से ज्यादा कॉमन सबसीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बी मिला यहाँ। फिर यहाँ ये इसको मैच था तो यहाँ है, फिर यहाँ पे फिर मैच है ए, तो फिर वो यहाँ गया। फिर यहाँ पे 2 मैच नहीं है तो या फिर ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, देखिए यहाँ पर भी हमें 2 पाथ मिल गया, मतलब 2 सीक्वेंस मिलेगा। फिर ये वाला करते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या हमें मैच मिल गया डी, तो हम यहाँ गए। फिर हमें यहाँ मैच मिल गया बी, ये भी हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिल गया। अब ये पाथ पे करते हैं 2, यहाँ 2 पे मतलब यहाँ तक कहाँ मिला था हमें, बी ए मिला था। फिर ये इसको क्या मैच नहीं है, बी और सी पे मैच नहीं है तो हम यहाँ चले जाते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, सी बी। तो फिर इसी तरह जाएगा इधर फिर इधर, तो हमें देखिए 4 लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मिल गए। तो गेट एग्जाम में पूछेंगे आपको कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, 3। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितने, 3, और उसका लेंथ क्या है, 4। देखिए एनईटी में इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे आपको, कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, 3, और उसका लेंथ क्या है, 4। क्लियर है कि नहीं बताइए, एवरीवन प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट। तो देखिए अब ये जो आप कर दिए, उसके बाद आप क्या करना है, आप ये देखिए कि अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे बी सी बी ए आया, तो देखिए क्या बी सी बी ए यहाँ है कि नहीं, यहाँ बी सी बी ए यहाँ है, बी सी बी ए है, मतलब सही है। आप अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे, फिर आए बी डी ए बी, बी डी ए बी, बी डी ए बी है, बी डी ए बी है, मतलब करेक्ट है आपका। तो आप आंसर इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं, बी सी ए बी है ना, बी सी ए बी, बी सी ए बी है, बी सी ए बी है,
तो इस तरह आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, लेंथ ऑफ द हेयर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट here the length of the longest common subsequence, here the length of the longest common subsequence is 4 and there are there are three subsequence of length and there are three subsequence of length 4। कितने मिल रहे हैं लेंथ 4 का वो भी पूछेंगे और आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस कितने मिले। तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ये कोड है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस का, जिसमें आपको दो स्ट्रिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई आर द डीएनए। एक्स एंड वाई क्या है, आपका डीएनए है। एक्स एंड वाई आर द टू डीएनए गिवन इन द टू एरे सेपरेटली, दो एरे में सेपरेटली दिया गया है। ठीक है, तो ये कोड है हमारा बॉटम अप अप्रोच का। एक्स और वाई क्या है, दो स्ट्रिंग है, एक्स एंड वाई आर टू डीएनए गिवन इन द टू एरे सेपरेटली, दो एरे में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक का लेंथ पता करते हैं, एक्स डॉट लेंथ एम में डाल दिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स, वाई डॉट लेंथ एन में कर दिए, लेंथ ऑफ वाई। लेट सी 0 to m और 0 to n ओके बी ए न्यू टेबल। हम मान लेते हैं क्या है कि ये नया टेबल है, जिसके अंदर एक टेबल बनाते थे ना सी, यहाँ 0 रख देते हैं, 1 2 3, फिर इसी तरह यहाँ पे 0, फिर 1 2 3, इसी तरह हम यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम टेबल कर रहे हैं। ठीक है, सो सी 0 to m 0 to n बी ए न्यू टेबल, बी ए न्यू टेबल फॉर i equal to 0 to m, here we are making first column as 0, हमें फर्स्ट कॉलम को 0 करना है। देखिए i equal to 0 to m कर रहे हैं, i equal to 0 to m जा रहा है और हर i को बढ़ा रहे, और j 0 है, j 0 है। ठीक है, तो ये तो आपका j 0 हो रहा है, तो ये तो आपका फर्स्ट रो हो जा रहा है। हाँ, ये गलत है, here we are making फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कॉलम को बना रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम देखिए, आई को इंक्रीज करें, रो को इंक्रीज करें, 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इस तरह ये सबको हम 0 कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 ही होता है। और j इक्वल टू 0 to n, यहाँ रो को 0 और यहाँ से j इंक्रीज कर रहे हैं, सारे को 0। देखिए पहले ये क्या किए, देखिए आपको पता है इधर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे और इधर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। फॉर i इक्वल टू m, हेयर वी आर मेकिंग फर्स्ट कॉलम एज 0। हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम को 0 कर रहे हैं, i इक्वल टू 0 to m, वी आर मेकिंग फर्स्ट कॉलम एज 0, सारा कॉलम को हम 0 कर दिए। एंड फॉर j इक्वल टू n, ये j इक्वल टू 0 to n, और रो 0 है, रो हमारा 0 है, ये रो, कॉलम बढ़ा रहे हैं 0, फिर 1, फिर 2, सबको 0 कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना, हम रो वाइज जा रहे हैं। ठीक है, हेयर वी आर कंप्यूटिंग रो मेजर ऑर्डर, रो वाइज कर। तो फॉर i इक्वल टू m, j इक्वल टू i इक्वल टू n, अगर इफ x ऑफ i, देखिए ये क्या है, इफ x ऑफ i इज इक्वल टू, ये इक्वल इक्वल होगा, इज इक्वल टू y ऑफ j, अगर इक्वल हुआ, ये अगर अगर देखिए, अगर x ऑफ i इज इक्वल टू x ऑफ j, तो हम क्या करते हैं, आपने कंडीशन देखे हैं, क्या करते हैं बताइए। तो हम एक माइनस 1 प्लस मैच हो गया, ये दोनों अगर मैच हो गया तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट पे जाते हैं, डायगोनल क्या हो गया, 1 माइनस 1 या फिर j माइनस 1, मतलब दोनों 1 माइनस 1 और j, i माइनस 1 और j माइनस 1, 1 प्लस दिस। एल्स में क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया c i माइनस 1 j या c i j माइनस 1, i j माइनस 1 या j सेम i माइनस 1। क्लियर है सभी को। स्पेस तो आसान है बनाना, क्योंकि एक एक मैट्रिक्स होगा इस तरह m इंटू एन साइज का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया, m इंटू एन, सिर्फ m इंटू एम होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एम एन, जो हमारा साइज है इस टेबल का। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, हर रो पे हम जब जाते हैं, हर कॉलम में या फिर इसमें जो हर सेल में हम जाते हैं, हम एक कंडीशन देखते हैं और इन दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो तो कांस्टेंट टाइम ही रहेगा ना। तो टोटल हमारा m इंटू एन एंड इंटू कॉन्स्टेंट 1 इज गोइंग टू योर एम एन। क्यों, क्योंकि हर जिसको फिल, इसको फिल कर रहे, एक कंडीशन देखेंगे
इक्वल रहा तो ये, नहीं तो इन दोनों का मैक्सिमम। हो गया, क्लियर है?